ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے امام کے ایک اور پروگرام کے ساتھ خاکسار عدنان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام ہم ہفتے میں 6 دن پیش کرتے ہیں۔ جمعے کے دن یہ پروگرام نہیں آتا، اس کے علاوہ باقی ہر روز تقریباً صبح 11:30 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس پروگرام کے 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ کو جماعت احمدیہ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے alislam.org اس کا وقتاً فوقتاً تعارف کروایا جائے، آپ کو بتایا جائے کہ کون سا حصہ جو ہے وہ کہاں موجود ہے، کس قسم کا مواد جو ہے آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے۔ اور دوسرا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اسلام اور احمدیت کے متعلق جو بنیادی قسم کے سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جائیں۔ اس پروگرام کا دورانیہ عموماً 35 سے 40 منٹ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اگر سوالات زیادہ ہوں تو پھر ہم 5-10 منٹ اس کو بڑھا بھی دیتے ہیں۔ تو جو لوگ باقاعدگی سے اس پروگرام کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے عمومی طور پر 2 حصے ہوتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم کسی موضوع کو لے کر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کسی سوال کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں، کوئی اعتراض جو جماعت احمدیہ پر ہوتا ہے اس کو لے کر اس کی تفصیل میں جاتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، اور پھر جو ہے پروگرام کے دوسرے حصے میں جو آپ کے لائیو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہوتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے یا ٹویٹر کے ذریعے سے، پھر ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو خدا کے ساتھ باندھتی ہے، اس کا خدا کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پروگرام میں اگر کوئی ایک موضوع لیا جائے کہ جس کے متعلق بہت زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ نماز ہی ہے۔ اس کے مختلف حصوں کے متعلق کہ اگر نماز مس ہو جائے تو کس وقت اس کو ادا کیا جائے، نماز میں کس طرح جو ہے ہم لذت اور سرور اور توجہ حاصل کر سکتے ہیں، کیا بہترین طریق ہے نماز کو پڑھنے کا۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، بعض اوقات ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور ہماری شریعت نے غلطی کے تدارک کے لیے بعض باتوں کا ذکر کیا ہے۔ خاص طور پر جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، اور غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات توجہ قائم نہیں رہتی، بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے، بعض اوقات کوئی اور پریشانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو اس کے تدارک کے طور پر اسلام نے کہا ہے کہ سجدہ سہو کیا جائے، یعنی کہ بھول چوک کا سجدہ۔ جب نماز میں کوئی کمی رہ جائے یا کوئی زیادتی ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے تو اس وقت جو ہے سجدہ جو کیا جائے اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ کہتے تو سجدہ ہے، لیکن دراصل یہ 2 سجدے ہوتے ہیں جو کہ نماز کو ختم کرنے سے پہلے جو ہے ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہے تھوڑے سے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن سے سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو جماعت احمدیہ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس سے کتاب ہے فقہ احمدیہ، اس کی طرف جو ہے وہ آپ کو لے جاتا ہوں، اور پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ سہو کیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ نماز میں اگر کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جس سے نماز میں شدید نقص پڑ جائے، مثلاً سہون فرض کی ترتیب بدل جائے، یا کوئی واجب جیسے درمیانی قاعدہ رہ جائے، یا رکعتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے، تو اس غلطی کے تدارک کے لیے 2 زائد سجدے کرنے ضروری ہیں۔ اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، یعنی بھول چول کے تدارک کا سجدہ۔ یہ دراصل 2 سجدے ہوتے ہیں جو نماز کے آخری قعدہ میں تشہد، درود شریف اور دعاؤں کے بعد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس کو بالکل نماز کے آخر پر ہم نے جو ہے وہ ادا کرنا ہے، یعنی تشہد پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، جو باقی 3 دعائیں کی جاتی ہیں وہ پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے پھر کرنا ہے۔ جب آخری دعا ختم ہو جائے تو تکبیر کہہ کے 2 سجدے کیے جائیں،
اور ان میں تسبیحات سجدہ پڑھی جائیں، یعنی جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، الگ کسی دعا کی ضرورت کوئی نہیں، وہی تسبیحات جو ہم ریگولر سجدے میں پڑھتے ہیں وہی اس میں بھی پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد بیٹھ کر سلام پھیرا جائے۔ سجدہ سہو کرنے سے دراصل اس اقرار کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بھول چوک اور ہر قسم کے نقص سے صرف رب العزت کی ذات پاک ہے، انسان کمزور ہے۔ اس غلطی سے درگزر فرمایا جائے اور اس کے بد نتائج سے اسے بچایا جائے، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو کہ غلطیوں سے پاک ہے، انسان تو غلطیوں کا پتلا، اس لیے غلطی ہو گئی ہے، اے خدا اس سے درگزر کر۔ غرض جب سجدہ سہو واجب کے ترک یا رکن میں تاخیر کرنے سے ضروری ہو جاتا ہے۔ غرض سجدہ سہو واجب کے ترک یا رکن میں تاخیر کرنے سے ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر رکوع یا سجدہ بھول کر چھوڑ دے، نماز کے دوران میں یا بعد میں اسے یاد آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ تشہد سے پہلے اس رکن کو پورا کرے، پھر تشہد اور درود شریف وغیرہ پڑھے، اس کے بعد اس تاخیر کے تدارک کے طور پر سجدہ سہو کرے۔ اسی طرح واجب کے رہ جانے سے بھی سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ بھی واجب کیا ہے نماز کے، اس کے متعلق اس کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ مثلا جن رکعتوں میں اونچی آواز سے قرات پڑھنی تھی ان میں اونچی آواز سے نہ پڑھی، یا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا سورت کا کوئی حصہ نہ پڑھا، یا درمیانی قاعدہ بھول گیا، یا رکعتوں کی مقررہ تعداد سے زائد رکعتیں پڑھ لیں، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا، اور سجدہ سہو کرنے سے اس کمی یا غلطی کا تدارک ہو جائے گا۔ ایک شخص نے یہ خیال کر کے، اب ایک سنیریو بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے یہ خیال کر کے کہ نماز پوری ہو چکی ہے، سلام پھیر دیا، لیکن ابھی مسجد میں ہی تھا کہ معلوم ہوا کہ رکعت یا رکعت کا کوئی حصہ رہ گیا ہے، تو پہلے وہ اس حصے کو پورا کرے، اس کے بعد تشہد وغیرہ پڑھ کر سجدہ سہو کرے، اس طرح سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا اہم بات ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سجدہ سہو کرنا کافی ہوگا اور جو چیز مس ہو گئی ہے اس کو دوبارہ ادا کرنا ضروری نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جو چیز مس ہو گئی ہے مثلا ارکان نماز میں سے، پہلے ان کو ادا کرنا ہے، آخر پہ پھر سجدہ کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح اگر رکعتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے، مثلا یہ پتہ نہ چلے کہ ایک رکعت پڑی ہے یا دو، تین پڑی ہیں یا چار، تو کمی کے پہلو کو اختیار کیا جائے، یعنی کہ شک ہے کہ تین پڑی ہیں یا چار، تو پھر تین ہی سمجھی جائیں نہ کہ چار، کیونکہ کمی رہ گئی ہے تو اس کو پورا کر دیا جائے، اگر زائد ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کمی کے پہلو کو اختیار کیا جائے، اور اس کے بعد اور اس کے مطابق مزید رکعتیں پڑھی جائیں، اس کے بعد نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا جائے۔ امام اگر ایسی غلطی کرے جس سے سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ مقتدیوں کے لیے بھی سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا، لیکن اگر صرف مقتدی سے ایسی کوئی غلطی ہو جو امام کی اتباع کی وجہ سے اس کی غلطی قابل مواخذہ نہیں ہوگی، مقتدی نے غلطی کر دی تو اس کی کوئی بات نہیں، اگر امام کرے گا تو سب لوگ بھی جو ہے وہ سجدہ کریں گے جو بھی نماز میں شامل ہیں، لیکن مقتدی کرے گا تو اس کے لیے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ تو جیسے کہ میں نے ذکر کیا، بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ صرف سجدہ سہو کرنا کافی ہے اور اس سے نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی جو کمی اس میں رہ گئی ہے، لیکن اگر ارکان نماز میں سے کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو پہلے وہ رکن ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے۔ تو وہ ارکان نماز کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی مس ہو جائے تو پہلے یہ رکن ادا کریں گے، پھر جو ہے وہ سجدہ سہو کریں گے، اکیلا سجدہ سہو کرنا جو ہے اس صورت میں کافی نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے ارکان نماز؟ ارکان دراصل رکن کی جمع ہے۔ رکن نماز کے اہم اور ضروری حصے کو کہتے ہیں۔ نماز کے ارکان 7 ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، 2 سجدے، آخری قعدہ اور سلام۔ ان میں سے ہر ایک کا کرنا فرض اور ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑے تو نماز دوبارہ پڑھے، اور اگر بھول کر یا غلطی سے رہ جائے تو اسے آخری قعدہ سے پہلے ادا کیا جائے اور پھر
आखिरी तशहुद में मसनून दुआओं के बाद सजदा सहव किया जाए। तो ये 7 बातें हैं जिसको हमने ज़हन में रखना है। इनमें सातों में से कोई एक भी रह गई है तो पहले उसको अदा करना है, फिर सजदा सहव करेंगे। मसलन दोबारा बता देता हूँ, तकबीर तहरीमा, क़याम, किरात, रुकू, 2 सजदे, आखिरी कादा और सलाम। इनमें से कोई भी मिस हो गया तो पहले वो अदा करना होगा। फिर जिक्र आया मसलन कोई भूल गया और 2 सजदों की बजाय एक ही सजदा किया और बाद में याद आया तो पहले ये सजदा किया जाए, इसके बाद सलाम फेरा जाए। अगर तशहुद वगैरह पढ़ने बल्कि सलाम फेरने के बाद याद आए तो भी ऐसा करे, यानी पहले इस भूले हुए रुकन को अदा करे, फिर आखिरी कादा का तशहुद, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़े, फिर सजदा सहव करे और उसके बाद जो है वो सलाम फेरे। तो ये जो है अरकान नमाज हैं। इनमें से कोई भी रह गया है तो पहले वो रुकन अदा करना है, फिर जो है वो अपने सजदा सहव करना। फिर आगे है वाजिबात नमाज। वाजिब नमाज के ज़रूरी हिस्से को कहते हैं, लेकिन रुकन से इसकी अहमियत किसी कदर कम है। नमाज के वाजिबात 12 हैं। नंबर 1 सूरह फातिहा पढ़ना, ज़म सूरत यानी फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में और सुनन व नवाफ़िल की सारी रकतों में सूरह फातिहा के साथ कुरान करीम का कुछ और हिस्सा पढ़ना, ख्वाह पूरी सूरत हो या इसका कोई हिस्सा। ये जो है इसके मुतालिक हमने पहले प्रोग्राम कर दिया था, जो ज़ूर नूर की तरफ से ताज़ा इरशाद आया तो ये था कि सिर्फ़ फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में सूरह अल-फातिहा के साथ कोई और सूरत पढ़नी ज़रूरी है। तीसरी और चौथी जो है अगर तो फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो फिर तो वैसे ही आखिरी 2 में जो है वो सूरह अल-फातिहा ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर सुन्नत पढ़ रहे हैं तो फिर पहली 2 जो है रकतें उसमें सूरह अल-फातिहा और कोई और सूरत, लेकिन तीसरी और चौथी जो सुन्नत की रकत है उसमें सूरह अल-फातिहा ही जो है वो काफ़ी होगी। फिर कहा नंबर 3 जो है जो वाजिबात नमाज में है आमीन कहना। नंबर 4 रुकू के बाद सीधे खड़े होना यानी कौमा। नंबर 5 सजदा के बाद बैठना यानी जलसा। नंबर 6 2 रकतें पढ़ने के बाद बैठना यानी दरमियानी कादा। कादा नंबर 7 कादा ख्वाह दरमियानी हो या आखिरी, इसमें तशहुद पढ़ना। नंबर 8 सलाम के वक्त मुंह दाएं और बाएं फेरना। नंबर 9 हर रुकन को ठहर ठहर कर पूरे वकार, तमानियत और आराम से अदा करना, जिसे तादील अरकान कहते हैं। नंबर 10 हर रुकन को अपनी अपनी जगह तरतीब से अदा करना, जो पहले है उससे पहले और जो बाद में है उसे बाद में, इसे तरतीब अरकान कहते हैं। नंबर 11 नमाज बाजमात की सूरत में मगरिब और इशा की पहली 2 रकतों में और फजर, जुमा, ईदैन की सारी रकतों में इमाम का सूरह फातिहा और दूसरी किरात को बुलंद आवाज से पढ़ना और ज़ोहर व असर की सारी रकतों में किरात आहिस्ता आवाज से पढ़ना। नंबर 12 इमाम के लिए तकबीर तहरीमा बुलंद आवाज से कहना। इन वाजिबात में से अगर कोई वाजिब जानबूझकर आमदन छोड़ दे तो नमाज नहीं होगी। अगर भूल से रह जाए तो इसके तदारक के तौर पर आखिर में सजदा सहव किया जाएगा। मसलन दरमियानी कादा भूल गया या गलती से रुकू के बाद सीधा खड़ा हुए बगैर सजदे में चला गया तो इस किस्म के भूल या गलती के तदारक सिर्फ सजदा सहव करने से हो जाएगा। गोया रुकन और वाजिब में ये फ़र्क है कि रुकन अगर भूल से रह जाए तो उसे अदा करना ज़रूरी होता है और फिर इसके साथ सजदा सहव भी करना पड़ता है। लेकिन वाजिब रह जाए तो फिर इसके अदा करने की ज़रूरत नहीं, इसके बजाय सिर्फ सजदा सहव कर लेना काफ़ी है। तो ये सजदा सहव हम क्यों करते हैं, कब करते हैं और कैसे करना चाहिए इसके मुतालिक बयान था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मालूमात आपको कहाँ से मिलेंगी। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं, ये जमात अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट alislam.org है। तो उसके अगर आप मेन हिस्से यहाँ पे जाएँ तो इधर सर्च वाले हिस्से में अगर आप फ़िक़्ह अहमदिया टाइप करें तो आप पहले ही लिंक पे यहाँ क्लिक कर दें तो आप फ़िक़्ह अहमदिया जो है वहाँ चले जाएँगे। तो इसमें इबादत का हिस्सा या जो है निकाह, तलाक़, खुला वगैरह के मुतालिक जो है अगर आपने मालूमात जाननी है तो यहाँ तो ये जो मैंने पढ़ के दिखाया है आपको, ये सफ़ा नंबर जो है सजदा साहब का बयान 99 और 100 जो सफ़ा था उसमें आया है और जो अरकान नमाज और वाजिबात नमाज थे वो 91 और 92 सफ़ा में से मैंने जिक्र किया। तो ये फ़िक़्ह अहमदिया से पढ़कर आपको दिखाया गया है। अब जो है आपके लाइव सवालात की तरफ आते हैं। इस मौजू के मुतालिक जो भी हमने बयान किया है या किसी और चीज़ के मुतालिक जो है कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। कई लोगों के पैगामात आए हैं।
उनमें से बाज़ के मैं नाम पढ़ देता हूँ। फरीदा बुशरा साहिबा, रफ़ी सफ़दर साहिब, मौलूद अहमद साहिब, निगमगीर साहिबा, जुल्फ़कार अहमद साहिब, RC 65, मुदस्सर अहमद साहिब, गालिब साहब, इस तरह और बहुत सारे लोगों ने अस्सलाम वालेकुम कहा है। मैं आप सबको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम के लाइव हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। अच्छा, पहला सवाल ले लेते हैं। कहते हैं कि दज्जाल को अहादीस में फितना कहा गया है या आखिरी ज़माने की निशानी। दज्जाल को फितना कहा गया है या आखिरी ज़माने की निशानी, रोशनी डाल दें। क्योंकि दज्जाल का गधा तो सारी दुनिया के इस्तेमाल में है। अगर कोई इसके इस्तेमाल पे एतराज़ करे तो क्या जवाब दें? अगर उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना तो ये ना इस्तेमाल करें, किसी को मजबूर तो नहीं ना किया जा सकता। पहली बात तो ये है आपके सवाल की कि वो फितना है या निशानी है, दोनों हैं। निशानी भी है आखिरी ज़माने की, आखिरी दौर की, और उसके ज़रिए से जो है वो फ़ितना भी पैदा होगा। फ़ितना से मुराद ये है कि दीन की ये जो बातें हैं उसमें वो फ़ितना पैदा करेगा। दज्जाल दरअसल दाजला से निकला है, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा धोखा देने वाला, झूठ से काम लेने वाला, मुलम्मसाज़ी करने वाला। तो दज्जाल के लफ़्ज़ में ये इशारा था कि मज़हबी पहलू से ऐसी बातें जो हैं दीन में दाख़िल कर दी जाएँगी दज्जाल की तरफ से, जो कि दीन में नुकसान का बायस जो है वो बनेंगी। और इस हदीस में फिर उसके दज्जाल के गधे का भी ज़िक्र आता है, जिससे पता चलेगा कि जो है वो दज्जाल क्या है। तो दज्जाल से मुराद जो है हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया है कि ईसाई अक़वाम हो सकती हैं जिन्होंने दीन के पहलू में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ज़्यादा डाल दी हैं और बहुत सारी चीज़ों को कम कर दिया है। अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें ऐड कर दी हैं और अपने फ़ायदे के लिए और मफ़ाद की खातिर दीन में से चीज़ों को निकाल दिया है और लोगों को दीन के ज़रिए से बहका रहे हैं। तो ईसाई पादरियों का बहुत बड़ा ग्रोह जो है उन्होंने बाइबल में तसर्रुफ़ कर दिया है, बाइबल में जो है चीज़ें ऐड कर दी हैं, यहाँ से वहाँ से निकाल दी हैं और लोगों को मज़हब की रूह से जो है वो बहका रहे हैं। तो उसकी सवारी के मुतालिक बता दिया ताकि हमें पता चल जाए कि एक जगह से उसके कोई एक हदीस नहीं है जिसमें उसका ज़िक्र है, कई अहादीस में मुख्तलिफ़ निशानियाँ जो हैं उसकी बयान की गई हैं कि वो दज्जाल का गधा होगा, वो एक जगह से छलांग लगाएगा तो दूसरी जगह पर पहुँच जाएगा, मशरिक़ से छलांग लगाएगा तो मग़रिब तक पहुँच जाएगा, जाने से पहले जो है वो आवाज़ देगा, उसके ऊपर खुराक के पहाड़ वग़ैरह होंगे, उसके अंदर खिड़कियाँ होंगी, रोशनियाँ होंगी, वो आग खाएगा, उसमें मुसाफ़िर बैठेंगे वग़ैरह-वग़ैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बताती हैं कि दरअसल एक मीन्स ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कि वो सवारी के लिए इस्तेमाल होगा। तो आजकल अगर आप हवाई जहाज़ देखें या बहरी जहाज़ देखें तो ये सारी अलामात जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फ़रमाई थी वो पूरी होती हैं और पता चलता है कि वो अक़वाम जो इनको बनाने वाली हैं वही दरअसल दज्जाल थी जिनका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया था। तो वैसे तो सारे मौलवी जो हैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, रेल को भी इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज़ को भी इस्तेमाल करते हैं, जो बहरी जहाज़ को भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये दज्जाल का गधा जो है अभी तक नहीं आया, ना उनका गधा आया है, ना उनके नज़दीक दज्जाल आया है। तो फिर क़यामत तक जो है वो इंतज़ार ही करते रहेंगे। अगर वो नहीं मानते, तो हम कुछ नहीं इस बारे में कर सकते। सारी बातें तो वाज़ेह हो चुकी हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ पूरी हो चुकी हैं। फिर भी अगर कोई ना माने तो वो गधा ही होगा, उसको और फिर क्या कहा जा सकता है। अच्छा, अगला सवाल है ये जो गैर अहमदी कहते हैं या अली मदद, क्या ये कहना दुरुस्त है? ये शिर्क है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तो वफ़ात पा चुके हैं। जो शख्स वफ़ात पा चुका है, वो कैसे किसी की मदद कर सकता है? तो ये तो मुर्दों को बुलाना, उनसे चीज़ें तलब करना, उनसे दुआओं को कबूल करवाना या उनकी जो है उनसे मदद तलब करना है तो शिर्क के ज़ुमरे में आ जाता है। इसलिए मदद जो है वो खुदा तआला से सिर्फ़ तलब करनी चाहिए और कोई जो है ख़्वाह को नेक आदमी हो, ख़्वाह वलीउल्लाह हो, ख़्वाह ख़लीफ़ा हो, ख़्वाह खुदा का नबी हो, जो इस दुनिया से चला गया, उनका कोई इख्तियार नहीं है कि आपके लिए
फ़ायदे की कोई चीज़ कर सके या आपको कोई नुकसान पहुँचा सके। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के ही हाथ में है, उसकी कुदरत में है, किसको फ़ायदा पहुँचाना है, किसको नुकसान पहुँचाना है। तो ये भी खुदा के अलावा और माबूद बना लेना, ये जो है वो दुरुस्त तरीक नहीं है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि क्या सजदा शुक्र के लिए भी वज़ू की शर्त लाज़िम है? सजदा शुक्र के लिए वज़ू की शर्त जो है वो लाज़िम नहीं है। वज़ू की शर्त जो है सिर्फ़ नमाज के लिए है। बाकी अगर आपने सजदा शुक्र किसी और मौके पर करना है, अचानक दिल की ऐसी कैफ़ियत हो जाती है, किसी ऐसी बात का पता चलता है जिससे इंसान को गैर मामूली तौर पर जो है वो खुशी होती है, खुदा ताला के एहसानों की तरफ उसकी तवज्जो जाती है, तो ऐसे वक़्त में वज़ू करने की ज़रूरत कोई नहीं होती। वो जज़्बात का इज़हार करना होता है इंसान ने, तो सजदा शुक्र के लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ नमाज़ के लिए वज़ू की ज़रूरत है। कहते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दज्जाल एंड हू इज़ ही? ये सवाल का जवाब जो है पहले सवाल में आ गया है। दज्जाल से मुराद मगरबी और ईसाई अक़वाम हैं और इससे कोई एक फ़र्द मुराद नहीं हो सकता बल्कि इससे अक़वाम और ग्रोह मुराद हैं और कई ईसाई अक़वाम पर जो है इसकी जो है तस्दीक होती है। उसमें अमेरिका भी हो सकता है, यूरोप की अक़वाम भी हो सकती हैं, रशिया वग़ैरह भी। अच्छा, आगे कहते हैं कि many women say that we should not take printed and adorned scarves. They should be totally plain and simple. To much extent, this is compulsory. ये हर एक का एक उनका सवाल ये है कि बाज़ ख़वातीन कहते हैं कि जिसमें ऐसे स्कार्फ नहीं लेने चाहिए जिसपे मुख्तलिफ किस्म की प्रिंटिंग हुई हो, मुख्तलिफ फूल बूटियाँ बनी हुई हों और सादा स्कार्फ जो है वही पहनना मुनासिब है। उनका सवाल ये है कि किस हद तक ये जो है ये जायज़ है। तो सादगी तो वैसे ही इस्लाम उसकी ताकीद करता है कि हर चीज़ में सादगी इख्तियार की जाए। तो अगर छोटे-मोटे डिज़ाइन उसमें दुपट्टे वगैरह में आ जाते हैं तो उसमें ऐसा कोई हर्ज नहीं है। बहुत ज़्यादा भी सख्ती इस लिहाज से नहीं करनी चाहिए। असल तो पर्दे का हुक्म दिया गया है। तो पर्दे के तौर पर जो स्कार्फ इस्तेमाल किया जाए वो मुनासिब है। हाँ, इतने भी डिज़ाइन या शाइनी नहीं होना चाहिए कि लोगों जो है आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएँ। अगर तो ये नीयत हो कि मैं बेहतरीन और मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों का और डिज़ाइन का ताकि लोगों की तवज्जो मेरी तरफ फ़ौरन आए, तो वो दरअसल वैसे ही पर्दे के मुनाफ़ी है। पर्दा तो इसलिए है कि लोग जो हैं वो तवज्जो ना दें इस मामले में और आप जो है आसानी से घूम फिर सकें अपने कामों में जो है वो मशगूल रहें। लेकिन अगर सारी तवज्जो लोगों की आप ही की तरफ आ जाती है, आपके लिबास की वजह से, आपके जो है वो स्कार्फ की वजह से, तो ये मुनासिब नहीं है। सही और गलत का मसला नहीं है, हर एक ने अपना ज़ाती तौर पर फ़ैसला करना है। सादगी बहरहाल अपनानी चाहिए। थोड़ी बहुत अगर डिज़ाइन उसमें आ जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, तो बहुत ज़्यादा शौक और भड़कीले जो हैं वो उनसे बचना चाहिए। ये माशाल्लाह अल्ताफ़ मधुबानी साहब ऐसे ही सवाल पूछते हैं। कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब के अब्बू भी हैं, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं हैं। ज़रा तमाम मिर्ज़ाई सवाल पर गौर करके तौबा करके ख़त्म नबूवत पर ईमान लेके आओ। मेरे भाई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ ये ज़िक्र किया था कि आखिरी ज़माने में जिस ईसा का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जिस मसीह का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उसका भी बाप नहीं होगा। ये ज़रा वो हदीस हमें हवाला दिखा दें तो हम आपकी बात मान जाएँगे। ये अपनी तरफ से आपने जो है वो एक मयार मुकर्रर कर लिया है जिसका ना कुरान में कोई सबूत आता है, ना ही हदीस में कोई सबूत आता है। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मखसूस था कि अल्लाह ताला ने मौजज़ाना रंग में जो है उनकी पैदाइश का जो है वो सामान किया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल की तरफ गए थे, उनके वालिद नहीं थे, लेकिन जिस मसीह ने आखिरी ज़माने में आना था, उसके मुतालिक कहीं नहीं है कि उसका बाप नहीं होगा, उसकी माँ नहीं होगी वगैरह-वगैरह। तो बहरहाल ये आपका चूँकि खुद साख्ता मयार है इसलिए इसको उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत कोई नहीं है। क्योंकि नबी को मयार नबूवत पर परखते हैं, ना कि अपनी तरफ से मयार। मयार जो कुरान करीम ने बयान किए हैं, वो हैं कि नबी की गुज़श्ता ज़िंदगी जो है उसको देखो, उसके दावे से पहले की ज़िंदगी जो है वो कैसी थी। फिर तुम्हें पता चल जाएगा वो सच्चा नबी है कि नहीं। फिर फरमाया कि उसका
खुदा ताला के साथ जो है वो सलूक देखो कि क्या खुदा ताला उसकी मदद कर रहा है, उसकी जमात की मदद कर रहा है या उसके मुखालिफिन की मदद कर रहा है। ये है नबी को परखने का मयार। तीसरी बात ये है कि क्या खुदा ताला उसके ऊपर गैब की खबरें जो है वो नाजिल कर रहा है, उसको बता रहा है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। अगर तो ऐसी कोई पेशगोइयां हैं जो ऐसे नबी ने की है तो उसके ज़रिए से उसको परखें। फिर क्या वो दावा करने के बाद ज़िंदा भी रहता है या फ़ौरन खुदा की पकड़ में आ जाता है? क्योंकि झूठों के मुतालिक खुदा ने कहा कि मैं उनकी शारक काट दूँगा। तो देखिए कि जिसने दावे नबूवत किया है, क्या उसको उसके बाद लंबी उम्र अता हुई है या जो है वो फ़ौरन जो है उसकी पकड़ हो गई है। तो ये वो मयार है जो कुरान करीम ने किसी भी नबी को जो है वो परखने के बयान किए हैं। लेकिन ये मयार कहीं ज़िक्र नहीं है कि किसी का बाप नहीं होगा, किसी की बहन नहीं होगी, किसी की चची नहीं होगी, ये आपके खुद साख्ता मेरे भाई मयार हैं। अगला सवाल ये है कि we say in Durood that oh Allah grant Holy Prophet sallam and his all the blessings and barakah that you granted Hazrat Ibrahim alayhi salam and his all. Is there any specific blessing we are referring to as per history? बात यह है कि सबसे बड़ी नेमत जो है वो तो नबूवत की ही नेमत है। रूहानी लिहाज से बात तो मज़हब की हो रही है ना, मज़हबी लोग ही ये दुरूद पढ़ते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। मज़हब की दुनिया में सबसे बड़ी नेमत क्या है? वो नबूवत ही है ना। तो एक लिहाज से हम खुदा ताला से ऐसे भी इनामात माँग रहे हैं कि ऐ खुदा, जैसे तुमने हज़रत इब्राहीम की आल में बेशुमार जो है वो अंबिया भेजे, तो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी रूहानी लिहाज से ऐसे लोगों को पैदा कर जो कि नबूवत के मुकाम पर जो है वो सरफराज हो जाए। एक तो ये ज़ाहिरी बात है। और फिर जो है आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद और बरक़ात माँगना और उनके रूहानी मदारिज के लिए, उनकी तरक्कियात के लिए दुआएँ करना, तो ये सारी बातें उसमें शामिल हो सकती हैं। अच्छा, फ़ज़ीलत मलिक साहिबा का सवाल है कि कुरान पाक में जब सजदा आता है तो उसमें सिर्फ़ तस्बीहात ही काफ़ी हैं? तस्बीहात के बाद जो है बाज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएँ भी पढ़ी हैं, तो उन दुआओं को भी पढ़ना चाहिए। मसलन उनमें से एक ये है कि अल्लाहुम्मा सजदा लका रूही व जसदी व जनानी, क्या खुदा मेरी रूह, मेरा जिस्म, मेरा दिल जो है तेरे लिए सजदा करता है। तो पहले जो है वो पहले जो है वो तस्बीहात पढ़ें, यानी 3 दफ़ा सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अला आप पढ़ेंगे सजदा तिलावत में। फिर उसके बाद जो है ये दुआ या बाज़ और दुआएँ जिनका हदीस में या फ़िक़्ह की किताबों में ज़िक्र आता है, वो दुआएँ आप पढ़ेंगे। अगर वो किसी को नहीं आती तो फिर जो है ये वाली जो तस्बीहात हैं वही काफ़ी होंगी। होख का होख मेरा ख़्याल है आपने एक दफ़ा यही बताया था कि होख है आपका नाम, जर्मन ज़ुबान का आपने बताया था, एक लफ़्ज़ है। तो होख साहब का अगला सवाल ये है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर गेटिंग एडमिशन इन जामिया? डज़ वन नीड टू हैव स्टडीड एनी स्पेसिफिक सिलेबस? कि जामिया में दाखिला लेने का जो है वो क्या तरीक़ेकार है? क्या कोई ख़ास उसके लिए सिलेबस पढ़ना पड़ता है? उसके लिए हर जामिया का जो है वो मुख्तलिफ उन्होंने जो रूल्स वगैरह सेट किए हैं। तो अगर आप जर्मनी में हैं तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख लें कि जर्मनी की जामिया ने जो है वो दाखिले का क्या प्रोसेस रखा है। अमूमन 11 या 12वीं जमात तक पहले तालीम हासिल करनी होती है। उसके बाद जो है वक्फ़े नौ का जो सिलेबस होता है 16 साल तक, उसमें से सवालात पूछे जाते हैं और बुनियादी बातों का आपको इल्म होना चाहिए। कुरान करीम की तिलावत आनी चाहिए, बुनियादी उर्दू जो है वो आना चाहिए। मसीह अलैहि सलाम की कुछ 1-2 कुतुब आपने पढ़ी हो, नमाज़ वगैरह आती है वगैरह, तो बुनियादी बातें जो हैं वो कम से कम आनी चाहिए। और उसके अलावा जब आप एडमिशन के लिए दरख्वास्त लिखते हैं तो मेरे ख्याल है वो सिलेबस भी सजेस्ट करते हैं कि ये सिलेबस है, ये आप पढ़ें, तो इसमें से 2 या 3 महीने बाद आपका जो है इम्तिहान होगा। फिर जो उनमें से कामयाब हो जाता है वो उनको फिर जामिया में जो है वो दाखिला मिल जाता है। तो हर मुल्क का उस लिहाज से मुख्तलिफ है। यूके जामिया का अपना होगा, जर्मनी का अपना है, कनाडा का अपना है, पाकिस्तान, भारत वगैरह का अपना होगा। तो आप अपने जिस मुल्क में भी रहते हैं या जिस जामिया के मुतालिक भी आपने जानना है, उसकी वेबसाइट पे जाके जो है ये वाली मालूमात अवेलेबल होगी, तो आप देख सकते हैं। जी, ज़ुल्फ़िकार साहब, आपके सवाल का जवाब भी पहले सवाल में आ गया है, जो सजदा कुरान की बात हुई है, तो मैंने कहा है कि सुब्हान रब्बियल अला 3 दफ़ा पढ़ के अल्लाहुम्मा
सजदा ला करूही व जसदी व जनानी। अच्छा जी, अल्ताफ साहब कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा आदम अलैहिस्सलाम तक महफूज है, ज़रा मिर्ज़ा साहब की नसब बयान कीजिए। इसके मुतालिक खाक साहब ने एक पहले ही प्रोग्राम किया था जिसमें ज़िक्र किया गया था इस बात का कि आपका नसबनामा क्या है, आपके आबा-ओ-अजदाद जो है वो कहाँ से हिजरत करके आए, अहले फ़ारिस में से थे। जैसे कि यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी ज़माने में जब ईमान सुरैया सितारे पर पहुँच जाएगा तो सलमान फारसी की कौम से जो है बाज़ अशख़ास या एक शख्स आके उसको दोबारा आसमान से नीचे ले आएगा। तो आप पहले फारिस में से थे। अब दूसरी बात ये है कि जो दोबारा वही मयार जो आप अपनी तरफ से खुद साख्ता आपका मयार है, बना लिया है कि नबी के लिए जो है हज़रत आदम तक का नस्बनामा होना ज़रूरी है। तो आप मुझे ये बताएँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नस्बनामा आपको आता है? कि हज़रत ईसा और हज़रत आदम के दरमियान जितने सारे लोग आए थे, क्या आप उनका बता सकते हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बता सकते हैं? हज़रत सुलेमान का बता सकते हैं? हज़रत लूत का बता सकते हैं? हज़रत नूह का बता सकते हैं या हज़रत शुएब का, हज़रत सालेह का वगैरह-वगैरह। तो ये अपनी तरफ से जो है अपने मयार आपने बना ली है। जिन मयारों का कुरान ज़िक्र करता है उनकी तरफ बिल्कुल नहीं आएँगे। जिन मयारों का अहादीस ज़िक्र करती है उनकी तरफ बिल्कुल नहीं आएँगे। लेकिन जो मयार अल्ताफ मधुबानी साहब के खुद साख्ता हैं, हमेशा उनकी तरफ आएँगे। कभी कहते हैं कि नसबनामा होना चाहिए, कभी कहते हैं कि वालिद जो हैं वो नहीं थे हज़रत ईसा के, कभी कहते हैं कि हमने सीढ़ी लेके जाना है। तो मेरे भाई अगर ऐसे मयार बनाएँगे तो फिर तो सारी ज़िंदगी इंतज़ार ही करते रहेंगे, कभी जो है वो कोई आपको नहीं आएगा आपकी हिदायत के लिए। अच्छा, भाई यही कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब की मुकम्मल ज़िंदगी पर भी प्रोग्राम रखो, हम प्रोग्राम कर चुके हैं। अगर आपने हमें लेट जॉइन किया है, तो आप हमारी ज़रा प्लेलिस्ट में जाएँ। 2 प्रोग्राम मैंने कम से कम ऐसे किए थे, जिसमें आपकी दावत से पहले की ज़िंदगी और फिर जो है आपकी दावत तक की ज़िंदगी जो है, 2 प्रोग्राम थे। एक आपके इब्तदाई ख़ानदान कैसे वो हिजरत करके फ़ारस से जो है आए हिंदुस्तान में, एक उसके मुतालिक था। फिर आपकी पैदाइश से लेके आपके दावे तक का प्रोग्राम था। फिर इंशाअल्लाह ताला एक हिस्सा उसका रह गया है जिसका आपके दावे से लेकर आपकी वफ़ात तक है, वो इंशाअल्लाह ताला किसी मुस्तक़बिल के प्रोग्राम में कर देंगे। लेकिन ज़रा आप पहले वो 2 हिस्से देख लें, इनसे आपकी मालूमात में इंशाअल्लाह ज़रूर इज़ाफ़ा होगा। मलूद साहब का अगला सवाल है, कहते हैं कि अगर इमाम कोई सूरत भूल जाए और वो दूसरी सूरत शुरू कर ले तो सजदा सहव होगा? नहीं, ऐसी सूरत में सजदा सहव नहीं होगा। अगर कोई भूल गया है तो ऐसी भूल पर जो है वो सजदा नहीं है। अगर कोई मुक्तदियों में से कोई उसको लुक़मा दे देता है कि ये वाली आयत है, या किसी को नहीं आती और वो दूसरी सूरत जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इस सूरत-ए-हाल में सजदा सहव जो है वो करना ज़रूरी नहीं है। चलिए, बाकी दोस्तों के तो हम सवालात लेते रहते हैं, अल्ताफ़ मधुबानी साहब के भी ज़रा ले लेते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो गैर अहमदी दोस्त हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा सवालात लें, क्योंकि अहमदियों को तो इन बातों का अमूमन पता होता है, उनके फ़िक़ही नोयत के सवालात होते हैं या बाज़ मामलात की तफ़सील चाहिए होती है। लेकिन जो बाहर से आते हैं हमारे गैर अहमदी दोस्त, उनके जो है जमात अहमदिया के अकायद के मुतालिक, हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक होते हैं। तो इसी वजह से हम इन लोगों को बाज़ औक़ात ज़्यादा मौका देते हैं ताकि जमात अहमदिया का मौक़िफ़ वो जान लें। अब अल्ताफ़ मधुबानी साहब ये फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया से ईसाइयत का ख़ात्मा होगा, मगर मिर्ज़ा साहब के बाद ईसाइयत क्यों बाकी है? कुरान में है दलील, वइम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिह। ठीक है, अगर तो आपने फिर वही मयार बना लिया अपनी तरफ से। कुरान करीम तो ये कहता है फ़अग़रैना या अग़वैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़यामा,
کہ यहूद व नसारा की बात करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत तक के लिए हमने उनके दरमियान अदावत जो है वो डाल दी है। यानी कि इसका मतलब है कि वो क़यामत तक रहेंगे, यहूद भी रहेंगे क़यामत तक, नसारा भी रहेंगे क़यामत तक। अल्ताफ़ मधुबानी साहब कहते हैं कि नहीं, मैं तो कुरान के खिलाफ जाऊँगा, क्योंकि मेरा अकीदा जो है कि हज़रत ईसा के बाद दुनिया से ईसाइयत का खात्मा हो जाएगा। ये कहाँ से मेरे भाई आपने ये अकीदा घड़ लिया है? किसी कुरान की आयत में बताएँ, किसी हदीस में बताएँ। एक कुरान करीम की आयत का मैंने हवाला दे दिया। अल्लाह ताला कहता है क़यामत तक उनके दरमियान जो है वो बुग़्ज़ और अदावत डाल दी गई है। इस लिहाज से जो है वो आपका अकीदा जो है हज़रत ईसा के बाद सारे ईसाई मुसलमान हो जाएँगे, ये दुरुस्त नहीं है। अगला आपने जो हिस्सा कहा है कि कुरान कहता है कि वइन मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही, कि अहले किताब में से कोई भी नहीं जो कि उनकी मौत से पहले उन पर ईमान नहीं लेके आएगा। तो अब देखें, करोड़हा लोग ऐसे जो हैं अहले किताब में से, वो ईमान नहीं लेके आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है अभी तक वापस नहीं आए। उनकी ज़िंदगी में तो बहुत थोड़े लोग जो है वो उन पर ईमान लेके आए थे। तो 2000 साल पिछले देख लें तो कितने अहले किताब ईमान लेके आए। अब आपके अकीदे के मुताबिक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए ना, आप तो कहते हैं कि आसमान पे ज़िंदा मौजूद हैं। तो फिर कुरान करीम की ये आयत गलत ठहरती है कि जो कहती है कि हज़रत ईसा की वफ़ात से पहले अहले किताब जो हैं वो सारे आप पर ईमान ले आएँगे। लेकिन ये हक़ाइक़ के खिलाफ है, क्योंकि करोड़हा यहूदी हैं जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लेके आए। तो ये आपका अगेन खुद साख्ता जो मयार है वो गलत ठहरता है, क्योंकि हक़ाइक़ उसके खिलाफ हैं। इसलिए मेरे भाई वो बात किया करें जिसकी कुरान सपोर्ट करे या जिसकी अहादीस जो है वो सपोर्ट करे। अपने बनाए हुए मयार ना लेके आएँ, क्योंकि ये मयार आपका देखा जाए तो फिर करोड़हा यहूदी और जो अहले किताब हैं वो फौत हो चुके, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो है वो ईमान नहीं लेके आए। तो हमारा नहीं मानना कि मसीह की आमद सानी के मौके पर जो है सब ईसाई जो हैं वो मुसलमान हो जाएँगे या यहूदी जो है मुसलमान हो जाएँगे, क्योंकि कुरान के खिलाफ है ये बात। कुरान ने कह दिया कि क़यामत तक उनमें अदावत और बुग़्ज़ रहेगा। तो इसका ये मतलब है कि अक्सरियत उनकी जो है वो इस्लाम को कबूल कर लेगी हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। वो अक्सरियत कब होगी? इसके मुतालिक अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि 300 साल जो है वो नहीं गुज़रेंगे जबकि इस्लाम का गलबा जो है हो जाएगा। गलबे से मुराद ये है अक्सरियत हो जाएगी, हर एक बंदा नहीं होगा। ईसाई भी रहेंगे, यहूदी भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, हो सकता है कि दहरिया भी रहें, मजूसी भी रहें, लेकिन अक्सरियत जो है वो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इस्लाम को जो है वो मेरे भाई कबूल कर लेगी। अच्छा। ये अल्ताफ़ मधुबानी साहब आपके लिए सवाल आया है हमारे एक यूज़र की तरफ से, कहते हैं कि क्या अल्ताफ़ मधुबानी साहब ने कभी कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ा है? जी, अल्ताफ़ मधुबानी साहब, हमसे तो आप सवाल पूछते रहते हैं, ज़रा इस सवाल का भी ज़रा आप जवाब दे दें। क्या कभी आपने तर्जुमे के साथ कुरान करीम पढ़ा है? तो आपके जवाब का शिद्दत से हमें इंतज़ार रहेगा। अच्छा, अगला सवाल ये है कि क्या इस्लाम में सवाली को खाली हाथ ना भेजा जाए? कैसे पता चले कि ये फ़कीर है या सवाली है? फ़कीर भी तो सवाली होता है ना? सवाली वो होता है जो कोई सवाल करे, कोई अपनी जो है ख्वाहिश का इज़हार करे, आपसे कोई चीज़ माँगे। तो फ़कीर भी सवाली है और सवाली भी फ़कीर है। इस लिहाज से दोनों में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। जो आपके दर पे आ जाता है, आपके दरवाज़े पे आ जाता है, आपसे अपनी ज़रूरत का तकाज़ा करता है, आपसे मदद माँगता है, तो वो सवाली है, इसलिए आप उसको दे दें। ख़्वाह उसकी ज़रूरत जो है वो जेन्युइन थी या नहीं, ये उसका और अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला के साथ उसका मामला होगा। लेकिन आपने वैसियत मुसलमान जो है उसकी मदद करनी है और फिर आपको उसका अजर मिल जाएगा। अगर उसको ज़रूरत नहीं थी और जानबूझकर जो है वो फ़कीर बन गया या साइल बन गया, तो वो अलग बात है, उसका मामला खुदा के साथ है। क्योंकि यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ जो है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी कि देने वाला जो है
وہ لینے والے سے بہتر ہے۔ تو یہ آپ کو اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ جینون جو ہے فقیر ہے یا سائل ہے یا نہیں، آپ اس کو دے دیں خدا کی رضا کے لیے، اور اس کے مطابق ہی جو ہے وہ آپ کو اجر ملے گا۔ کہتے ہیں اسلام میں ذات کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو جو معیار قرآن کریم بیان کرتا ہے وہ تو متقی ہونے کا ہے۔ اس طرح احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اجسام کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ان میں کتنا تقویٰ ہے۔ تو اس لحاظ سے ظاہری ذات پات اور خاندان کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہی جو متقی ہے اور خدا کا خوف کرنے والا ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ غیر احمدی سوال کرتے ہیں کہ اگر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نبی ہیں تو ان کو نہ ماننے والے تو کافر ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ مسیح موعود کے دوبارہ کافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی ایک یہ خوبی بیان کی ہے کہ وہ سارے خدا تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور جب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو نبی شمار کرتے ہیں تو آپ کا انکار بھی ایسے ہی ہے جیسا کہ ماضی کے کسی بھی نبی کا انکار ہوگا۔ تو ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کے انکار پر منتج ہوتا ہے، اور چونکہ وہ ایسے نبی تھے جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشگوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں وہ آئیں گے، تو ان کا انکار کرنا ایک تو وقت کے نبی کا انکار ہے، اور پھر دوسرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا بھی انکار ہے، جنہوں نے فرمایا تھا کہ جب وہ مسیح موعود آ جائے تو پھر تم جا کے اس کی بیعت کرنا، خواہ تمہیں برف کے پہاڑوں پر بھی چل کر جانا پڑے، اور نہ صرف بیعت کرنا بلکہ اس کی مدد بھی کرنا۔ تو اس لحاظ سے ہر وہ شخص جو جان بوجھ کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے، آپ کا انکار کرتا ہے، وہ قابل مواخذہ ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنوں کا یہ کام ہے کہ سارے انبیاء پر جو ہے وہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ ہم اس بارے میں محتاط رہتے ہیں کہ کسی کو کافر کہیں یا نہ کہیں، لیکن ان کو دل اپنے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ خدا کے نبی کا انکار جو ہے انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ایک بڑے لحاظ سے جو دائرہ اسلام ہے اس میں تو وہ ہوں گے، لیکن جو مسیح موعود کا منکر ہے وہ بہرحال ایک لحاظ سے کافر ہے، جس کو ہم مسیح موعود کا کافر کہیں گے، لیکن آگے ان کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، خدا کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرے گا وہی بہتر جانتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بغیر نفل کے عشاء کی نماز مکمل ہوتی ہے؟ نفل کے کسی نماز کے مکمل ہونا کے لیے ضرورت نہیں ہے، خواہ وہ فجر کی نماز ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے۔ نفل تو زائد چیز ہیں، اصل تو فرائض ہیں، اور فرائض کے بعد جو ہے وہ سنتیں ہیں۔ تو فرائض اور سنتیں انسان ادا کر لیتا ہے، جس نماز کی جتنی بھی ہوں تو وہ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ نوافل جو ہے وہ زائد ہیں، ان کا فرائض کے کم یا زیادہ ہونے سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی الطاف مدھوبانی صاحب کہتے ہیں کہ نبی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن مرزا صاحب تو ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو۔ اگر آپ اس بات میں جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ پر لعنت ہو، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم پر ہو۔ بس اس سے زیادہ اس سوال کا اور کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، اگلا خالد شیخ صاحب کا سوال ہے، پلیز ٹیل اباؤٹ جن کو ہم نے گرم ہوا سے پیدا کیا انسان سے پہلے۔ یہاں گرم ہوا سے جنوں کو پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ بیکٹیریا ہیں۔ تو جن کے لفظ میں یہ بات پائی جاتی ہے ایسی چیز جو مخفی ہو، تو اس لحاظ سے یہاں بیکٹیریا مراد ہے، اور
اس جنوں کے متعلق جو ہے خاک صاحب نے تفصیل کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا. اگر آپ ہماری پلے لسٹ میں جائیں تو اس میں تھم نیل کا ٹائٹل ہوگا قرآن و حدیث میں بیان جنات کی حقیقت. تو اس میں قرآن کے حوالے بھی دیے گئے تھے, احادیث کے بھی حوالے دیے گئے تھے. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس کا تفصیل کے ساتھ ایک جواب دیا تھا. وہ جواب میں نے اس پروگرام میں بیان کیا تھا, حوالہ جات کے ساتھ جو ہے یہ ساری تفصیل ہوئی تھی. تو اس لحاظ سے آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تو چونکہ پروگرام کے بالکل آخر میں ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے, لیکن چونکہ اس پروگرام کو جو ہے پہلے اس سوال کو ہم پہلے لے چکے ہیں, اس لیے کائنڈلی ہمارے ویڈیوز میں جا کے پلے لسٹ میں جا کے تھم نیل دیکھیں قرآن و حدیث میں بیان جنات کی حقیقت, تو اس میں جو ہے تفصیل مل جائے گی. ویسے جن سے مراد مخفی مخلوق ہے جو ظاہر نہ آئے, جو لوگوں کے سامنے نہ آئے. تو بعض جگہ اس سے مراد بیکٹیریا بھی ہے, بعض جگہ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے ساتھ روابط نہ رکھیں, بعض کا اس سے مراد پہاڑی اقوام بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ حیثیت والے سمجھتے ہیں, امیر کبیر. تو اس سے کئی چیزیں مراد ہیں, لیکن تفصیل کے لیے وہ والا پروگرام دیکھ لیں. چلیں انہی صاحب کے سوال لے لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبوت اگر رحمت ہے تو مرزا صاحب پر ہی ختم کیوں نہیں؟ ہم تو نہیں کہتے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, جب وہ چاہے گا جس کو چاہے گا عطا کر دے گا. اگر خدا تعالیٰ چاہے گا کہ مستقبل میں بھی کوئی نبی آئے تو ہم کون ہیں اس کی رحمت پر روک ڈالنے والے؟ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ مرزا صاحب کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی تو کبھی بھی آ سکتا ہے جب خدا تعالیٰ اس کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کرے گا. اچھا انہی صاحب کا لے لیتے ہیں. اگلا سوال کہتے ہیں کیا مرزائی حج کرتے ہیں؟ جی بہت سارے احمدی جو ہیں وہ حج کرتے ہیں. حج کے لیے بعض شرائط ہوتی ہیں, جس پر بھی وہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں, مثلا راستے کا امن ہو, اس کے پاس وسائل ہوں, اس کے پاس جو ہیں جانے کا آسانی ہو, اس کی صحت اچھی ہو, تو جن پر بھی یہ شرائط لاگو ہو جاتی ہیں, پوری ہو جاتی ہیں, وہ پھر جو ہے حج کرتے ہیں. اور بے شمار احمدی جو ہیں وہ ہر سال حج کرتے ہیں. پاکستان سے نہیں جاتے کیونکہ ان پر پابندیاں ہیں, ان کو بعض ایسے فارم جو ہے فل کرنے پڑیں گے جس میں انہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف جو ہے ان کے عقائد کے خلاف جانا پڑے گا, اس وجہ سے وہاں سے نہیں جاتے. باقی دنیا کے ہر ملک سے جو ہے وہ احمدی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. مدھوبانی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا, ابھی تک آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ کیا کبھی آپ نے قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ میں نے 7-8 سوال آج آپ کے اس پروگرام میں ان کے جواب دے دیے ہیں. آپ سے صرف ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا کبھی ترجمے کے ساتھ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ آپ نے میرے بھائی ابھی تک اس کا جو ہے وہ جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے جی, پروگرام کے جو ہے آخر پر پہنچ چکے ہیں. ابھی کامنٹس تو اور بھی ہیں, سوالات بھی ہیں, لیکن چونکہ 48 منٹ ہو چکے ہیں, آج کے پروگرام ہمیں یہی ختم کرنا پڑے گا. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں, تاکہ جب بھی پروگرام آئے آپ کو فوراً اس سے اطلاع ہو جائے کرے. اور دوسری درخواست یہ ہے کہ اس پروگرام کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر کریں, تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو, خواہ وہ آپ کے احمدی دوست احباب گھر والے ہیں یا غیر احمدی ہیں, تاکہ وہ اس پروگرام میں آ کر جو ہے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. جیسے الطاف مدھوبانی صاحب آئے تھے, آج انہوں نے کئی سوالات پوچھے, جتنے ممکن تھے ان کے جوابات ہم نے دے دیے. اس طرح اور بھی جو دوست آتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے سوالات جو ہیں وہ پہلے لیے جائیں, اور بعد میں جو اپنے احمدی دوست ہیں ان کے بعد میں جوابات جو ہے ان کے سوالوں کو دیے جائیں, تاکہ ان کو دوسروں کو زیادہ موقع ملے. تو اگر کوئی آج سوال رہ گیا ہے تو معذرت چاہتے ہیں, لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ پروگرام ہفتے میں 6 دن آتا ہے. اگر آج سوال کا جواب نہیں آیا تو کل کے پروگرام میں آ جائیں, کل بھی نہ آئے تو پرسوں آ جائیں. ہفتے میں 6 دن یہ پروگرام آتا ہے, اللہ ماشاء اللہ. جب کوئی اور دوسری مصروفیت ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے پروگرام نہیں آتا, لیکن عمومی طور پر 6 دن آتا ہے, جمعے کے علاوہ تقریباً ہر روز. تو آئیے آج کے پروگرام کو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.